Hello, children. Welcome back to Extra Class with Aaron Mandal. Children, today we are going to discuss your lesson number 15, the present tense from your book Collins English Grammar and Compositions. Students, uh, previously in last class we was discuss chapter number 14, tenses. Okay, so the next chapter is 15, the present tense. I was give you the little bit idea about present tense. What is present tense? Present tense, the tense which is telling us the present time. एक ऐसा टेंस ऐसा टेंस जो प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जो हमें वर्तमान समय के बारे में बताता है, उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. इसके फोर काइंड्स होते हैं, चार प्रकार के टेंस होते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबा दें और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. राइट. और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ. साथ ही अगर आपको कुछ मैसेजेस करना है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं. तो शुरू करते हैं द प्रेजेंट टेंस. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो इसमें क्या करना है देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस. इसमें वर्ब्स को पहचानना कौन सा वर्ब है. आई रीड स्टोरी बुक्स एट नाइट. मैं रात को बुक्स पढ़ता हूँ. क्या करता हूँ? बुक्स पढ़ता हूँ. सो रीड. वी वर प्लानिंग ए वेकेशन. आर प्लानिंग. ओके, वी हैव completed their homework. They have completed their homework. They have completed. Okay. Next, I have been working on this project since yesterday. I have been working. Have been working. Okay. Next, when are the action denoted by the verbs performed? When the actions are denoted by the verbs performed. So which one is the correct verb? Actions are the actions. Okay, so this is complete. Next, present tense. Definition of present tense. Present tense of the verb indicate or a state or action that happen in present time, means in this time only. वर्तमान समय के बारे में जो कुछ बताता है उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. ही इज़ गुड एक्टर. वह एक अच्छा एक्टर है, अभिनेता है. आई लिव इन गोवा. राइट. ये प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स है, आप देख लेना. सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट काइंड ऑफ tense is simple present tense. Simple present tense used to refer an action that happen in present time. It also used for action that happen regularly or universal truth. ध्यान देने वाली बात है, आपको क्या ध्यान देना है, इसका यूज कहाँ पर होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस. राइट. सो जो काम रेगुलरली हो रहा, हमेशा हो रहा, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे सेंटेंस. जैसे रेगुलर क्या हो रहा, आई गो टू स्कूल, मतलब आप डेली स्कूल जाते हो. आई गो टू ट्यूशन. राइट. सो दिस actions are happen regularly, so you have to always use simple present tense while you are making a sentence or speaking to someone. यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होती है? जो दुनिया की सच्चाई है. लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज पूरब की ओर उगता है. द मिल्क इज वाइट. यूनिवर्सल ट्रूथ. राइट, सबको पता है. नेक्स्ट, फॉर्मिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसका फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट. दिस इज द फॉर्म ऑफ simple present tense. And object also you can write, like she loves to paint portraits. She loves is your what? Loves is your simple present, means verb first. Okay, she loves to paint portrait, like this. Next, the negative of form by adding do or does not to base form of the verb, like I do not like football. Right. She does not sleep
late. If you are forming negative sentence, then we have to use do or does not. The interrogative is formed by using do and does, subject and base form. Does he like dogs? Do we need a new car? Right, if it is interrogative sentence means क्वेश्चन सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाती है फिर. सिंपल present continuous tense. The tense in this tense it is second kinds of tense. In this tense, present continuous tense is action that are taking place at the time of speaking. जो काम अभी हो रहा, like I am teaching, right? इसमें हमेशा ing फॉर्म होता है. Okay, like she is chatting with her friend. I am leaving the library now. इसमें आपका फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट इज सॉरी, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है. आई है जैसे यहाँ पर, या आप और भी कुछ लिख सकते हैं. एम या फिर आर प्लस मेन वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म. ओके, पढ़ लेना आप. इसमें कुछ आपको नोट्स दिया हुआ. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Present perfect tense denotes an action that has been completed at the specific time in present and whose effects are still there. राइट, जो अभी एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हुआ है और उसका प्रभाव अभी भी है. लाइक आई हैव मेड रोटी फॉर डिनर. मैंने डिनर के लिए, अभी के डिनर के लिए, आज के डिनर के लिए क्या बनाया? रोटी बनाया है, चपाती बनाया है. सी हैज़ फिनिश्ड ईटिंग हर फूड. उसने अभी अभी क्या किया? अपना खाना कंप्लीट किया. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्म क्या, मैं आपको बता दूं. सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. राइट, हैव और हैज़ आप लगा सकते हो, प्लस वर्ब थर्ड. ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान देने की बात है. वाइल यू आर स्पीकिंग, वाइल यू आर राइटिंग समथिंग, सो आपको टेंस की बहुत ज़्यादा टेंशन देना पड़ेगा आपको. सेंटेंस कहीं गलत ना हो जाए. यस, टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस होना चाहिए. सो टेंस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर. एंड दिस इज़ 4 काइंड्स ऑफ टेंस. फोर्थ नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस tense. Present perfect continuous tense, what is? It shows an action that started in the past but is still continuing. It take the form has or have plus been plus verb ing. मतलब क्या है, आपको समझाना है. जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा. फॉर एग्जाम्पल, राइट, यू आर स्टडिंग इन सम स्कूल. आप कोई ना कोई स्कूल में पढ़ रहे हो, बट यू गॉट एडमिशन लास्ट ईयर, 2 years ago, मे बी 4 years ago. नाउ यू आर इन क्लास 6. राइट, आप 6 साल पहले भी एडमिशन लिए होंगे या फिर कुछ सालों पहले लिए हैं. मीन इट वाज इन द पास्ट बट अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हो. सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. लाइक फॉर एग्जांपल, सी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. राइट, वो हम सुबह से अभी भी क्या कर रही है? पढ़ रही है. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले फॉर 2 days. में प्ले के लिए पिछले 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ. राइट, इसका फॉर्म अभी जैसे यहाँ पर बताया गया है. सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन आपको लगाना ही लगाना, प्लस वर्ब आएंगे जो भी है. गो, गोइंग, प्ले, प्लेइंग, लाइक दैट. कुछ फॉर्म्स इसमें बताए गए हैं. रूल्स आप इसमें देख लेना, इस टेबल में भी है कुछ. राइट, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. ए पार्ट, fill in the blanks using the present tense of the given verbs. इसमें जो verbs दिया हुआ है इसमें present tense हमें क्या करना है? fill up करना है. ओके, सो शुरू करें, देखते हैं क्या है इसमें. मानसून डैश इन इंडिया एंड अदर ट्रॉपिकल एरियाज. मानसून अकर, कंटिन्यूस हैबिचुअल एक्शन है, हमेशा मानसून आती है. और डबल सी यू आर, सेम. दिस बी, okay, this be and other topic. Okay, this, there is strong rainfall which continues. सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आपको यूज़ करना है, एस लगाना है, कंटिन्यूस. फॉर मैनी डेज. द मानसून अराइव आपको यहाँ पर यूज़ करना है, ARRIV, अराइव इन इंडिया इन जून एंड लीव
same, Leave, leave by mid October. Okay, sometime it's okay, sometime it's rains. Okay, rains, rains too much, and there are floods. There are floods in the most places. Other times it's days. सो डू डू है, इसमें क्या करना, फॉर्म चेंज करना, डज लिखना, DOES, डज नॉट रेन एट ऑल देयर बी ड्रॉट्स, ऑल देयर इट्स बी ड्रॉट्स। ओके, ऑल देयर आर, ड्रॉट्स प्लूरल है, ऐसे इसीलिए आपको आर लिखना। एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन डिपेंड, सेम आपको लिखना, DEPEND, डिपेंड a lot on the monsoons. Okay, so this is complete your A part. Next exercise B part we will start in our next class, next lesson, next day, tomorrow. Okay, till then, be happy, see you again in next class, and don't forget to mention in comment box. Okay, thank you.